फिर से नुब्रा वैली में विंटर ट्यूशन क्लोजिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी चेयरमैन, एयरफोर्स स्टेशन कमांडर और इनकी अहलिया और दीगर मौजूद थे। एयरफोर्स टीम और इंडियन आर्मी ने विंटर ट्यूशन को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं नुब्रा के गांव तेरसे में, जहां पे यहाँ पे विंटर ट्यूशन चल रहा था। तो आज यहाँ पे फाइनल सेरेमनी है और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे वो लोग जितने भी यहाँ इस विंटर ट्यूशन को देने के लिए जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको थैंकफुल करने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट से, और इसी के साथ साथ यहाँ के ऑर्गेनाइजर से भी बातचीत करेंगे और काउंसलर हुंदर से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। जिगमे नमजाल तेने गाजे थांग सुम्पा इका तेरसर गुंतुजला तेने जुरजोंग ट्यूशन याल विंटर अल्टरनेटिव कैंप जुन जितांग तेने इका हॉस्टल चोस्ते तेने गाजे गेट ला कुलिक चुक्स्ते तेने हॉस्टल चोस्ते रशियन पूरा स्टॉक चोस्ते तेने इका लुपटुक सांगमा नंको बोर्ते गेरगा नंग कुक सांगमा हाले तेने कुक सांग नang tene inangku duks te mana skitpo nanya pole ngata subject chikpo manba tene ngata akerte na ika activity ladakh se culture ladakh se skat tena chwa ngata lobjong ta ngata game stalyang sok tene tezuk ma mangpo jigyot tene ngala thugung undi ka skyot jena tene ngata akerte nang thelkan chok subskan chok tene lobchukun kerte nang daksa performance gyala chen yot tene wese lubchuk changme gyala chat pa tene diri kolozi jakpo kerte nang aja thugu pheche men tang manyan kasaju tene I wo kertena lopchungu ne phia ma phantok shigot I winter camp kerna besni shigman ba tene nga kunjang lotos miska tene yula so donation dictures te khongse tene ina thu nyalwa chan mangpo dale tene tena chwa kertena ngata askapje dukpa thuksha rimbo che tene ngata si skundun tene chosam rimbo che skundune tene support ka dul injik tang yot tene nija news 18 pa ngaja winter camp chokna ning takpana thukje che jule dira le nya nang pe ngotu tan le nya bo dira shirik shukyo le dira gen le yang nya chutang le nya bo dira e phanto du le ata nang pa in je sha zo mene ata gyus ma bo gyus meru le chu no chi fe no de gen le nya jang tang le chak chut pul ja zo chut me pul ja zo shipe lang gen le jak tang mo le dere o chang phayon chin zo gen le zo dang mo le tene nya dira nya ha to gari tu ga la le gari tu ga lang ze cho student mene lob jong jna rikpang hon ba chin le o tu nya khana la pa se direct cho sha chile cho sine sina ayang ma chin ba ko ne ngai fe chus ko na cha thi chus bol le te nya o tu sine yang na special sile le special sile sina yang nya gari chu su be kale pa na mem le pa nya class thon chule malap khaul su be khaul zo sina yang nya jis be activities ma bo chile jise culture chok competition chok dung game chok nya ma bo chule zo ngaja gulla ketena I guntu se zurjong mo ma phanto tene I guntu se zurjong mo ko tangputa skapje thuksharim boches kunun skapje chosarim boches kunun genjing men namyal yang hundar sana se chitus ka kunjang lo to sangma hing takpane thukje che ju chele I guntu se zurjong mo phespane pala ngaja lo chukula ma phanto senji ondukle tene se chegalang se chitong se rangan ches matang nangpa jigin pane pala nangpe chos ches go ches ma khachane no khalale tene tes ko la ngaja gulla mang pujik lave thalale tiring hetenang I guntu se zurjong tu se jakpele tene ngaja gulang nima ketenang cause bure to sang pata chama khalale tene lobjong jikta school samen alhaba nokpa tenang ne chichi Butu se zurjona practical dunla chochuk tu khalale hunlanga daksa chang zerangen che zukta practicing met pan khalale tene nga losum ketena I gutu se zurjona yosten tene nga daksa ketena khata zerangen khalale tene nga hunla chang practicing met tene I gutu se zurjom bonga ja une fiama pato sanji tu ji subject मतलब क्या पढ़ाते हो आप देखा ketena nga ta ladakh shezik chukpoi no khalale tene ladakh se junglu se zeratos tene tetos mamang pojik labelle tene tioman ba dandire modern dance lu tetos mamang pojik labelle music instrument daman surna zera tetos mamang
Talale. Tene dembarang ikuntu se zurjum bonga jalo to kone fema phato संजितो ने यहाँ पे बच्चों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए और बच्चों ने अपने तरीके से यहाँ के सारे जितने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है सबको धन्यवाद दिया, थैंकफुल उनको कहा। और यहाँ पे बच्चों का कहना है कि ये जो विंटर ट्यूशन है यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे हर तरीके के नॉलेज दिया जाता है, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो अलग अलग कलर वेस्टर्न डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो। और इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया चीज़ उन्होंने सीखा है इस विंटर ट्यूशन में वो है कॉन्फिडेंस कि स्टेज पे जाके कुछ बोलने का। इनका कहना है कि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो हेजिटेट होते हैं, उनको बोलने में उन्हें डर लगता है स्टेज पे, बट इस विंटर ट्यूशन की वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है और बहुत ही अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज़ भी कराए हैं और इनको बहुत ये विंटर ट्यूशन इनके लिए बहुत ही सफल रहा है। और इसी के साथ साथ बने रहिए 13 से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। सबसे पहले तो मैं मेहदी नासरी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं करगिल को छोड़ के लद्दाख के लिए लड़के नेशनल लेवल पर नासिर मेहदी ने बोला कि 16 स्टेट में जीत क्या है लद्दाख स्टेट जीत क्या है। तो मेहदी लद्दाख के मेहदी नासरी का करगिल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने पहला MM एयर रियलिटी शो जीत लिया है। इनका कहना है कि यह मुकाबला सख्त था। लद्दाख के दुश्वार गुजार इलाके से ताल्लुक रखने वाले मेहदी ने सख्त मौसमी हालात में तरबियत की मुनासिब सहूलियात न होने के बावजूद अपने हौसले बुलंद रखे। नासरी ने कहा कि उन्होंने इस शो में सिर्फ ये दिखाने के लिए हिस्सा लिया था कि लद्दाख के खिलाड़ी किसी भी खित्ते के खिलाड़ियों से कम नहीं है। इनका कहना है कि उन्होंने अपना सब कुछ दिया। मैं मेहदी नासरी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं करगिल को छोड़ के लद्दाख के लिए लड़के नेशनल लेवल पर ऑलरेडी नासिर मेहदी ने बोला कि 16 स्टेट में जीत क्या है लद्दाख स्टेट जीत क्या है। तो मेहदी अकेला, मेहदी का नाम ही है तो पोएन का नाम नहीं है, ना करगिल का नाम, लद्दाख का नाम है। तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल खासकर सी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस पे गौर करे और इसको फाइनेंशियली और आने वाले वक्त में मेहदी साहब को पूरे लद्दाख की आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये हमारी मतलब पोएन गाँव की ही जीत नहीं है, हमारे पूरे लद्दाख की जीत है इंशाल्लाह। इससे पहले मैंने यहाँ बताया कि मेहदी नासरी साहब को, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को जितना हो सके हम अपनी तरफ से मदद करेंगे और कौंसिल की तरफ से हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो भी बात भी हम मतलब कौंसिल में भी उठाएंगे और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी शेयर करेंगे। लद्दाख ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आज ये जान गया है कि कारगिल के अंदर भी बाशूर बासलायत लोगों की कमी नहीं है। पिछले साल खुद्दाम अली ने इस खेल में अपने आप को नंबर 1 मुकर्रर किया था। इस बार नासिर मेहदी ने इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की ताउन की ज़रूरत है करके इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। आप लोगों ने एक वीडियो वायरल भी किया था लद्दाख के अंदर, मगर अफसोस 1 साल का वक्फा गुजरा। वादा तो बेशक यूटी लद्दाख ने की थी कि इनको हर तरह से सपोर्ट की जाएगी, फाइनेंशियल इनको स्टेडियम वगैरह बना के देने का। इस चैनल के माध्यम से जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूटी के LG साहब जो अभी नए आए हैं, डिफेंस से बिलोंग करता है, साबिका जो है एक सर्विसमैन है, मुझे तवक्का है कि वो इस अपील को खत्ता लद्दाख के लिए ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के बका को ये मद्देनजर रखते हुए इनको फुल सपोर्ट करेंगे। द एग्जॉटिक पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन ने दुनिया की बुलंदतरीन मुंजमद झील हाफ मैराथन के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है। 20 फरवरी को मुंजमद पैंगोंग झील पर भारत की पहली मैराथन का आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख खुद मुख्तारी पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह के ताउन से चुंगथांग इलाके में तैनात हिंदुस्तानी फौज और नीम फौजी दस्तों के सहयोग से किया था। इस अवसर पर हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, डिप्टी कमिश्नर लेह श्रीकांत बाला साहब, काउंसलर्स,
फौज और नीम फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी संख्या मौजूद थी। हिल काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर ने सरहदी इलाकों में विंटर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इसे सालाना तकरीब बनाने की यकीन दहानी कराई। ये मैराथन ऑर्गेनाइजर का मेन आपका स्पोर्ट्स क्लब, इसके बारे में बताइए कि किस मकसद से ऑर्गेनाइज किया। हमारा मकसद ये था कि विंटर टूरिज्म बढ़ाए पेंगोंग जैसे इलाके में जहाँ समर्स में इतने टूरिस्ट आता है तो लोगों का आमदनी बढ़े, तो विंटर टूरिज्म हमने ध्यान में रख के किया। और इस मैराथन के थ्रू हम एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेंट हम ले रहे हैं। तो ये है कि हमने लास्ट ईयर जब ये आइडिया आया था हम सोच रहे थे कि मैराथन ही ना हो, इससे दुनिया को एक मैसेज जाए। तो मैसेज किया जाए, सोचा जाए तो लद्दाख जैसे इलाके में जहाँ बर्फ पिघल रहा है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्टिंग जल्दी हो रहा है, उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर्स को कैसे सेव किया जाए। तो एडवेंचर स्पोर्ट का मकसद ये है कि सस्टेनेबल बिहेवियरल चेंज लेके आना लोगों में थ्रू स्पोर्ट्स। तो हम क्लाइमेट चेंज जैसे इतना बड़ा समस्या है, किसी भी बड़े समस्या को आप उसको सॉल्यूशन देने में एक यूनाइटेड टीम की ज़रूरत होता है। तो स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट पर्सन मैंने देखा कि स्पोर्ट में सबको जोड़ के रखने का क्षमता रखता है। तो हम सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए सब क्लाइमेट को कैसे हम कॉम्बैट करें, फाइट करें। ये हमारे इस माउंटेन और मान मेराक विलेज इस बेल्ट के लोगों की तरफ से एक छोटे से कोशिश है जी। सर, इतने एल्टीट्यूड पे और इतना लेह से दूर कितना चैलेंजेस है आप लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजर के लिए? बहुत काफ़ी चैलेंजेस है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस है, पर हमने लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल हमारा मेन कोलैबोरेटर ऑर्गेनाइजर है, उसके अलावा आर्मी ने हमने कभी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिए। उनके प्रेजेंस ये एरिया बॉर्डर पे होने की वजह से काफ़ी अच्छा है। तो हम सबसे मदद मांग रहे हैं। ITBP ने मदद की है, लोकल मेडिकल डिपार्टमेंट BMO टंग से पूरा कैम्प लगा रहे हैं मेडिकल का। तो सब मिलजुल के इसको आसान कर रहे हैं। आसान बिल्कुल नहीं है, बट एक बार सब मिलजुल के करें तो बहुत आसान दिखने को आ रहा है। सर, इस बार 75 या 76 पार्टिसिपेंट रखा है, क्या आपको रिस्पांस काफ़ी आया कि आपने रिस्ट्रिक्ट किया है कि क्या इतना ही पार्टिसिपेंट है? हाँ, रिस्क बहुत सारा है। मतलब हाल ही में एंड की वन में तो 1000 की संख्या में फ़ोन आते थे। तो हमने 75 इसलिए रखा है, CC साहब के सामने मीटिंग हुआ कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेके हमने ये 75 डिसाइड किए। सर, आखिर में ये एक रूटीन स्पोर्ट रहेगा जो विंटर के लिए जो? हाँ जी, ये रूटीन स्पोर्ट्स रहेंगे, पर हम लिमिटेड नंबर से रखेंगे। हर साल एक्सप्लोइट करना नहीं चाहते हम। विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ये मान मेराक विलेज के एरिया में उसकी अंडर ही रखेंगे, ये हमारा मकसद है जी। हमारे साथ हिल काउंसिल के चेयरमैन है। पेंगोंग लेक पे अभी मैराथन हुआ, वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। सर का बहुत योगदान है। सर का काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि हिल काउंसिल की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। सर, इसके बारे में बताइए जो। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे लद्दाख के लोगों को, और ख़ासकर जो है यहाँ पे जो हमारे पेंगोंग के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, जो मन मेराक और जो स्पंगमेक लुकुंग और फोबरंग इलाका, इनफैक्ट मैं बताता हूँ पूरे दुर्बुक सब डिवीज़न के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमने जो है आज जो है एक बार फिर से जो है इस सब डिवीज़न में जो है एक इतिहास लिखा है। हमने जो इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है जो हमारा जो पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का जो है गिनीज बुक में ऑफिशियली जो है दर्ज हो गया है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक हमारा एक विजन था कि हम पूरे रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते थे, और ख़ासकर जो है एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है रूरल के लोगों को देना चाहते थे। तो इसलिए जो है जब ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, यहाँ के जो है हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ लद्दाख करके एक है, हमारे लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ के स्थानीय काउंसलर्स और हमारे चंगथंग के इसी जो है उनके जब लाया तो हमने कहा कि ये विज़न जो है हमारे काउंसिल के विज़न के साथ फिट बैठता है। और काउंसिल का विज़न यही है कि हम जो है रूरल सेक्टर में एक स्टेबल लाइवलीहुड देने का काम करें और एक सस्टेनेबल टूरिज़्म और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म देना चाहते थे। तो इस हिसाब से जो है इस जो हाफ मैराथन जो है फ्रोजन लेक पे हुआ है उसका आयोजन हमने किया था। और साथ ही साथ जो है जब हम ये मैराथन यहाँ पे कर रहे थे तो ये इटसेल्फ एक बड़ा ही एक यूनिक मैराथन था, क्योंकि इतने ऊंचाई पे जो है इस तरह का मैराथन हमारे देश में तो पहली बार हो रहा है, और दुनिया में भी जो है इतने ऊंचाई पे कहीं नहीं हुआ। आर्टिक में होता है लेकिन वो भी जो है इतने
ऊंचाई पे नहीं होता है, और इतने ऊंचाई पे, और वो भी जो है पेंगोंग जैसे झील के ऊपर जो है, जो सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है, और उसके ऊपर वो यहाँ पे हाफ मैराथन करना बड़ा ही चैलेंजिंग था। लेकिन जो है हमने उस चैलेंज को स्वीकारा, सभी ने स्वीकारा, और हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी जो है एक हिस्ट्री लिखने में जो है सहयोग दिया है। आज हम सभी के कलेक्टिव एफर्ट से जो है यहाँ पे हमने हिस्ट्री बनाया है, और ऑफिशियली पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हो चुका है जी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक बार आपके माध्यम से जो है यहाँ के जो है आर्मी और पैरामिलिट्री और यहाँ के BR और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी ने बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल और एक कलेक्टिव रोल का अदा किया है, और सभी ने जो है एक बड़ा ही एफर्ट लगाया, सब ने मेहनत किया, यहाँ के लोगों ने भी मेहनत किया कि ये जो है मैराथन जो है यहाँ सक्सेस हो। बहुत ही सफलतापूर्वक ये पेंगोंग मैराथन ऑर्गेनाइज किया आपने, पर्सनली बहुत ही इंटरेस्ट लिया इसमें। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे पास एक कंसेप्ट आया था कि एक पेंगोंग पे फ्रोजन लेक मैराथन करेंगे, तो उसके लिए पिछले 1 साल से हम उसकी तैयारी कर रहे थे, और इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी थे, जो रनर्स की सेफ्टी को देखना है, बाकी चीज़ें भी थी, और विंटर में हम तो जितने भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनके प्रॉपर अकोमोडेशन और सारी चीज़ें को ख्याल में रखते हुए, और सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें हमने लाया, इंडियन आर्मी, ITBP, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, LHDC, और वहाँ की जितने भी पेंगोंग लेक पे गांव हैं उनके सारे विलेजर्स, इन सब का ये मैं मानता हूँ कि सबका मेहनत का एक हम देख रहे हैं सक्सेस कि आज एक सक्सेसफुली हमने वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेंगोंग मैराथन लेक मैराथन कंप्लीट किया, और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका रिकॉर्ड किया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना चैलेंज था, क्योंकि लॉजिस्टिक लड़ना इतना दूर, वो भी इतने एल्टीट्यूड पे। तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी हमने इसमें मीटिंग्स किए पिछले 3-4 महीने से, और माइन्यूट डिटेल्स पे हमें जाना पड़ा कि राइट फ्रॉम सेफ्टी इक्विपमेंट, जो भी रनर्स इस पे दौड़ने वाले, तो उनको एक प्रॉपर एक सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि कोई भी एक इंजरीज ना हो और एक सेफली वो उस पर रनिंग कर पाए। सेकेंडली जो हमारा ट्रैक था उसका भी हमने एक रेकी करवाया। लगभग 10 दिन पहले हमारा UTDRF और जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स LMGA इनकी जॉइंट टीम ने इसका एक रूट का मुआयना किया, और जो सेफ रूट है आपने आज देखा होगा, पूरा एक रूट का रेकी किया गया और जगह जगह पे रखे गए थे ताकि रनर्स एक प्रॉपरली तरीके से इसमें दौड़ पाए। और पेंगोंग देख सकते हो कितना बड़ा झील है, जो गर्मियों में टूरिस्ट के लिए बहुत ही एक आकर्षक जो टूरिस्ट स्पॉट रहता है। तो ये बुरी तरह से जम चुका है। अभी हम वहाँ से क्रॉस करके आए, लगभग इसको झील को क्रॉस करने में लगभग पैदल चल के आएंगे तो आधा घंटा लगता है, और थोड़ा रिस्क भी रहता है कि कहीं बीच में बर्फ़ टूट ना जाए। तो अभी आप देख पा रहे हो कि काफ़ी सारे एथलीट्स अभी दौड़ रहा है पेंगोंग लेक के ऊपर। ये एक अपने आप में एक बड़ा इवेंट जो बड़ा हिस्टोरिक रहेगा, और कोई भी जो अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ दौड़ रहा है। और ये जो रन फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज किया, तो ये एक यहाँ जो पेंगोंग में विंटर टूरिज्म की प्रमोशन भी एक इसका उद्देश्य है। कैमरामैन सोनम निंचन के साथ मुरुफ तांदिन पेंगोंग लेक से। लद्दाख कल्चरल एकेडमी लेह के सहयोग से 1 महीने के स्पेशल चिल्ड्रन कल्चरल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सकाफती वर्कशॉप लद्दाख कल्चरल एकेडमी लेह में समाप्त हुई। इस अवसर पर ECLAHDC लेह गुलाम मेहदी मेहमान खुसूसी थे। लेह के मुख्तलिफ हिस्सों से 200 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप को 4 बैचों में तकसीम किया गया था। वर्कशॉप के डायरेक्टर ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप का आयोजन तलबा की हौसला अफजाई के लिए किया जा रहा है। वर्कशॉप के जरिए बच्चों को अपने वालिदैन और सबसे अहम बात दादा दादी के साथ बातचीत करने का मौका मिला है, जो हमारी सकाफत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के नुकसानात से मुतालिक भी इस वर्कशॉप में जानकारी दी गई। Stanzin namsalin le. Stanzin namsalin dang I daksa culture workshop school chi malang gomang ketang tanga ngi me stanzin namsalin le ale nga jinda jipain le ngi lobde mingbo government council model school saktin le nga ka yong stemash kit poyong le nga langa chotso zerkan je samet pin le tin nga ka chotso yang demo lobsle I hafta chinanga ja chi changma lobsle जैसे कि जंक फूड जना ta ka zono dano mobile sta nga ja ka zono
yang po junglu kar secesrang mang po lopslete fiasar cetanang chuk dang mam la nging tak panet thuje chele yang po nge ispera sangma nging na khute maduga ngaje lopdi thugu changmang nge shadad le jazna ngaje school na ngarang mane maya adukle yang po workshop पेचेस व्या कल्चर एकेडमी से सर संगमाला थुगजे चले। लद्दाख कल्चर एकेडमी ले द्वारा स्पेशल चिल्ड्रन कल्चर वर्कशॉप का आयोजित किया गया था और ये वर्कशॉप जो था जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जो कि हफ्ते हफ्ते का गैप था और 4 बैचेस में बांटा गया था, जिसमें बच्चों को कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में सिखाया गया था। और इसी विषय बात करने के लिए जुड़े हैं सतन नाचुक, जो कि वर्कशॉप डायरेक्टर हैं। तो सर, ये कल्चर वर्कशॉप के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, तो पैंडेमिक के बाद इस बार हमने 4 बैचेस में बच्चों का वर्कशॉप किया था और जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 200 के करीब 4 बैचेस को मिला के हुआ था। तो इस वर्कशॉप, ये एक स्पेशल कल्चर वर्कशॉप है जिसमें हम बच्चों को ये देते हैं कि सबसे पहले बच्चे ये सोचे कि मन ही मन में ये ठान ले कि मैं कर सकता हूँ, अपने ऊपर बिलीव करे, मैं कर सकता हूँ, जो भी करना होगा, बोलना होगा, जो भी एक्टिविटी होगा वो मैं कर सकता हूँ करके हम कॉन्फिडेंस बिल्ड अप बच्चों में। एक बात ये, दूसरी बात, इस वर्कशॉप में लद्दाख के जितने भी एरियाज हैं उन एरिया से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ के अलग अलग स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं, अलग अलग रीजन के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो सभी मिल के एक दूसरे में शेयर होता है कि एक दूसरे का ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज़ और पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ शेयरिंग होता है। वो एक बच्चों के लिए फ़ायदा है। और तीसरी बात, जो बच्चे मोबाइल और टीवी के साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ चिपक के रहते हैं, मैं ये कहूँगा, तो वहाँ से निकल के बच्चों को इस जगह पे हम जॉय देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं और इंजॉय करें। और इस वर्कशॉप का एक थीम ही ऐसा है कि जॉयफुल लर्निंग है। तो बच्चे यहाँ पे एक्टिविटी के जरिए बहुत कुछ सीख लेते हैं, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, सॉन्ग डांस के बारे में बहुत कुछ सीख लेते हैं। जी, तो ड्यूरिंग वर्कशॉप बच्चों को सर क्या क्या सिखाया गया था? हाँ, हमने इस वर्कशॉप के दौरान बच्चों को, एक तो ये था कि लद्दाख के रिडल बहुत होते हैं, जो हम बचपन में थे, हम उस रिडल को खेलते हैं। तो बुजुर्ग के साथ, दादी दादाओं के साथ बहुत कुछ खेलते हैं, वो हमारा ख़त्म होते जा रहा है। हमने उसको रखा था। तो उनको बच्चों से ये कहा था कि घर से 1-1, 2-2, 4-4 रिडल लेके आना है। तो उन्होंने क्या किया, इस रिडल को लेने के लिए, इसको लाने के लिए पेरेंट्स से पूछे, दादा दादी से पूछे, और यही इसी बहाने दादा दादी और बच्चों के बीच में, पोता पोती के बीच में इंटरेक्शन हुआ और बहुत सारे खुश हो रहे हैं दादा दादी, क्योंकि आप टीवी और मोबाइल से अलग होके हमारे साथ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत सारी खुशियाँ दादा दादियों को मिलता है। ये एक बात हुआ था। दूसरी, हम इसमें लद्दाख की जो फोक सॉन्ग है उसको भी लेते हैं, डांस, बच्चों को लद्दाख के फोक डांस है उसको करते हैं, और यहाँ की जो वैल्यूज है, कल्चर के वैल्यूज है, उनको सिखाते हैं। और बच्चों को लद्दाख की फूड के बारे में, जो आजकल बच्चे जंक फूड ज़्यादा करते हैं, उससे हटा के हमने अच्छे खाना खाने के लिए, और साथ ही साथ में मोबाइल को अलग करने के लिए, जो मोबाइल से बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं रे के ज़रिए, उनसे मतलब हटने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे हम सिखाते हैं बच्चों को। जी, तो वर्कशॉप को लेकर ये पेरेंट्स का इंटरेस्ट किस तरह था सर? बच्चों को किस तरह वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे? हाँ, हम सोच रहे थे कि पहले बच्चे यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे। पहला बैच हमारा 25 का, ये बैच हर एक बैच का 25 का सीट था। तो पहले बैच में हम 23 ही आया था। तो हमने सोचा बच्चे इसके पेरेंट्स इसके लिए या तो अवेयर नहीं है या तो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। जो ही इस वर्कशॉप को करते करते गया तो एडवर्टाइज होते होते लास्ट बेच पे इतना बच्चे आए, 25 के जगह हमें 60 बच्चे आने लगे। बहुत सारे बच्चों को हमें रोकना करना पड़ा कि हमने उनको ना भी करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स नाराज़ हुए हैं, बच्चे भी नाराज़ हुए हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिला था। उनसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मौका मिले नहीं था। हाँ, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बच्चे यहाँ पे भेजते हैं और उनका फीडबैक